السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو خبریں شیئر کریں گے۔ ایک تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں اور جنہوں نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے دی ہیں بن مانگے، ان کے لیے بڑا انکشاف ہوا ہے کہ بھئی کیسے یہ ہوا ہے، یہ کرشمہ کیسے ہوا ہے۔ طیب بلوچ روز ویلاگ میں پریشان ہوتے تھے، آج میں نے طیب کو خبر پڑھ کے سنائی تو طیب بھی چونک گئے۔ طیب نے کہا تھا میں بھی سوچ رہا تھا کہ منصور علی شاہ سے تو یہ توقع کی نہیں جا سکتی تھی، لیکن نئے نئے انکشافات ہوئے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ دوسرا 6 اگست ہو گئی ہے، 6 اگست تک سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ 15 دن میں آپ نے کرنا ہے اور عمل درآمد۔ تو عمل درآمد جزوی ہوا ہے، 39 کا تو حلف ہو گیا، 41 کا نہیں ہوا۔ اب الیکشن کمیشن بھی اب اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ پھر ادھر سے 2 معزز ججز نے جو بینچ میں شامل تھے، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم افغان، انہوں نے پھر دھجیاں اڑا دی ہیں فیصلے کی۔ تو پھر اب جو تفصیلی فیصلہ آئے گا وہ کیا آئے گا یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، طیب کے ساتھ بات کریں گے۔ طیب، پہلے سائیں جسٹس منصور علی شاہ آپ کے دوست جو ہیں آپ زیادہ جانتے ہیں قریب سے، تو منصور علی شاہ صاحب عمران خان کے بنیادی ان کی فیملی کے وکیل، بھائی 90 کی دہائی میں جب جوان تھے، جب یہ وکالت شروع کی تھی ابھی تازی، تو یہ عمران خان کا چندہ چوری کیس شوکت خانم کا لڑ چکے ہیں۔ یہ نئے نئے انکشافات ہوئے۔ بس شاکر صاحب، بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ڈاکٹر باسط صاحب، ہاں، ڈاکٹر تھے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے لا کے اندر۔ اوکے، وہ ایک مطلب ہے کہ کیا ہوتا ہے، مسند سمجھے جاتے تھے، ٹھیک ہے، مستند۔ ہاں، نہیں مستند تو تھے لیکن مسند سمجھے جاتے تھے، سرٹیفکیٹ تھے لا کے اوپر بھی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، تو اس کتاب میں انہوں نے یہ چیزیں لکھی تاکہ نوجوان نسل یا جو بھی علم سے شغف رکھتی ہیں ان کو پتہ چلے۔ وہ میرے بہت اچھے دوست تھے، ڈاکٹر باسط صاحب، ٹھیک ہے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جو لکھا بالکل ٹھیک لکھا۔ اب سید منصور علی شاہ، ٹھیک ہے، افسوس ہوتا ہے مجھے حقیقت میں، ہم سیدوں کو سندھی سائیں کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں اور صحیح ہے، بالکل سائیں یعنی بڑا محترم ہے، لیکن صحیح بس کیا کہیں کہ سادات بھی شاید شرما گئے ہوں گے۔ بات یہ ہے جو کچھ انہوں نے کیا، آپ نے حلف لیا تھا کہ میں ان سے وفادار رہوں گا، اچھا میں اپنے ججز کے ضابطۂ اخلاق پہ پورا اتروں گا، اور آپ نے اپنے پرانے کلائنٹ کی وفاداری کی۔ اچھا پھر آپ نے صحیح نے کیا صحیح نے آئین سے، دیکھو ہمارا ایک وہ گانا مشہور ہے بلوچی، کانا یاری، ٹھیک ہے نا، تو اس میں وہ کہتے ہیں یار سے یا یاری ہوتی ہے یا غداری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے نا وہ آئین سے یا یاری ہے یا پھر غداری ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو صحیح صاحب سے غداری ہو گئی۔ لیکن وہ وجہ آج سمجھ آ رہی ہے، انکشاف ہوئے، وہ انکشاف یہ ہے کہ بھئی یہ 1990 میں 90 کی دہائی میں جب شوکت خانم چندہ چوری کیس ہوا، تو اس میں یہ نوجوان وکیل تھے، ماشاءاللہ بڑے سے خوبصورت ہیں، ہینڈسم ہیں، تو اس ٹائم تو ویسے بھی قیامت ڈالتے ہوں گے، تو اس ٹائم یہ عمران خان کے وکیل تھے، بالکل، اور چندہ چوری والے کیس میں عمران خان کو بچواتے رہے، ان کی وکالت کرتے رہے۔ اچھا پھر شوکت خانم میں 1996 میں بھی انہوں نے وکالت کے فریض سر انجام دیے، تو اب جائے آ کے ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ یہ اپنی یاری نبھاتے، آئین کے ساتھ، اپنے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن انہوں نے کیا ہے، یہ جو پورا مخصوص نشستوں کا آج ہمارے سامنے ایک کرائسس پیدا ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ فیصلہ، 8 ججز اکثریتی فیصلہ دے چکے ہیں، 2 ججز کہتے ہیں اس پہ امپلیمنٹ نہ کیا جائے، غیر آئینی فیصلہ ہے، پارلیمان کی نے فیصلہ اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک رہی اور کہتی ہے ہم اپنا آئین بنا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن رجوع کر چکا ہے کہ بھائی کیا کریں، الیکشن کمیشن کنفیوژن ہے، تو یہ سارا پروسیس کی مین جڑ سید منصور علی شاہ ہے۔ ہوتا کیا ہے، یہ معاملہ 13 رکنی بینچ کے پاس بھی نہ جاتا، ایک اپیل آئی تھی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اب اس میں چونکہ ججز کمیٹی فیصلہ کرتی ہے اس پہ کون سا بینچ بنایا جائے،
सही मंसूर अली शाह ने काजी साहब को कहा कि मैं हूँ, मैं सुन लूंगा, मुझे दे दें। इमरान खान का जो केस था, अब हमें रीजन समझ आ रही है ना, जैसे साइफर केस है, इसने अपने पास लिखवाया। हाँ, साइफर केस। और साइफर केस में अच्छा इन्होंने लिखवाया था, इन्होंने अब कमेटी में मंसूर अली शाह शामिल है ना, बेंच में शामिल थे, इजाजुल हसन चले गए तो ये शामिल हो गए साइफर बेंच में। और काजी साहब के दाना क्या कहते हैं, शाना बशाना रहे कि मैं हूं ना, फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूं, सीनियर जैसे होता है। काजी साहब मुरव्वत में, यारी में, दोस्ती में मारे गए किस्म के ना, धोखा हो गया। काजी साहब ने एतबार कर लिया और हमेशा वो हाथ हो गया। और दोस्ती हमेशा हाथ करते हैं, एतबार वाले, एतमाद वाले। सही है। मैं आपको उसकी वो भी स्टोरी बताऊंगा कि कैसे काजी साहब के साथ हाथ हुआ है। चलो आज मौका मिला है तो ये हम खोल के बताते हैं। तो इन्होंने साइफर केस अपने पास लगवाया और साइफर में कहा जी हमने कंप्लीट जस्टिस करना है। साइफर में भी मंसूर अली शाह को इमरान खान के लिए कंप्लीट जस्टिस याद आया। ये हाँ, इनके, मैं कुछ हवा में बात नहीं कर रहा इनकी तरह जो फैसला इन्होंने हवा में लिख दिया है। मैं हकीकत बात जो सही मंसूर अली शाह ने अपने ज़बान से अदा की साइफर केस के अंदर, जिसमें डेथ पेनल्टी है। आपके वो गुलाम सजाद गोपांग ने कहा था ना कि आपने तो उसमें उसकी जमानत दे दी, 200 केसेस थे और मेरे तो 14 केसेस हैं। मेरे क्लाइंट को, ठीक है ना, वो इधर दाल खाता है, आपका उधर तो मुर्ग मुसलन खा रहा है, ठीक है ना, उसकी आप जमानत दे सकते हैं 200 केसेस वाली भी। तो वो नवाब शाह के जो वकील है, क्लाइंट को क्यों नहीं, ठीक है। तो सही को उन्होंने, ये तो छोटा मुल्ज़िम है, ठीक है। तो खैर सही ने उस साइफर केस में जिसमें डेथ पेनल्टी खान साहब को होती थी, उसमें उन्होंने पूरा केस जो बढ़ गया ना साइफर का, जो हकीकत में साइफर आया, जिस पे इसने इमरान खान ने झूठा बयानिया बनाया, पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया और पार्लिमान में बैठे हुए जो पीडीएम के अरकान कौमी असम्बली थे उनको गद्दार तक कहा, ठीक है ना। तो उसमें सही साहब ने कंप्लीट जस्टिस करते हुए उसमें उनकी जमानत दे दी, जिस वजह से अब सुप्रीम कोर्ट जमानत दे दे तो चले लोअर कोर्ट का जज बेचारा क्या करेगा कि यार केस में से तो वो असल चीज ही निकल गई है, जमानत हो गई, तो अब हम सजाएं दे के क्या करें। तो इस वजह से पूरा का पूरा केस बढ़ गया। मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ शेर अफजल मरवत वाला, वो सही मंसूर अली शाह की इस कंप्लीट जस्टिस की वजह से, जो कंप्लीट जस्टिस उसको सिर्फ इमरान खान के लिए नजर आया, वरना हमारे गुलाम सजाद गोपांग को तो वो कंप्लीट जस्टिस नहीं दे रहा था। वो तो बेचारा इमरान खान की एग्जांपल दे के तो कंप्लीट जस्टिस लेने की कोशिश ले लिया, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया। फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तों वाला मामला जब आता है तो लाहौर, वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का 3 रुकनी बेंच था बेसिकली। उसमें इन्होंने फ्री को नोटिस दिए बगैर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, जो अरकान कौमी असम्बली जिनको मखसूस नशिस्तें जो बाकी पार्लिमानी पार्टियों में तकसीम हो चुकी थी, पीपल्स पार्टी मिल चुकी थी, उनको उन्होंने हलफ उठा लिया था, ठीक है, उनको रिवर्स कर दिया सिर्फ 3 रुकनी बेंच में बैठ के। ये 13 वाला 8 वाला अलग फैसला था, 3 में बैठ के, और उसकी अपील को काबिल समाअत करते हुए उसमें साईं मंसूर अली शाह थे, साईं मंसूर अली शाह अतर मिनल्लाह, ठीक है ना, अतर मिनल्लाह, और दोनों दोस्त हैं माशाल्लाह, और दोनों इमरान खान के यार साबित हो गए। हाँ, फैसले से नहीं, हकीकत में फैसलों से, बल्कि फैसले तो अब साबित कर रहे हैं कि ये यार है, लेकिन 1990 में उसका वकील था, 1996 में मंसूर अली शाह वकील था, और इमरान खान की तो फोटो भी है अख्तर मिनल्लाह साहब के साथ। इन दोनों ने ऐसी कारीगरी की कि बगैर सुने जो है वो नोटिस भी जारी कर दिए और पार्लियामान के उसके पूरी एक जो कुछ आपके सामने है। अच्छा, फिर मामला भेज दिया लार्जर बेंच को में लिए। अब जब लार्जर बेंच अच्छा, अब कमेटी के अंदर एक मामला उठा कि ये जो केस मखसूस नशिस्तों वाले पे भी लार्जर बेंच बनाना है या फुल कोर्ट बनाना है, तो उसमें ये मामला उठाया गया कि अब हम इस पे क्या करें। तो उस पे काजी साहब ने इनको कहा कि देखें, बात ये है कि हमारे ऊपर बातें आ रही हैं। आज ये ऑन द रिकॉर्ड मैं पहली दफ़ा ये बात आपको कर रहा हूँ, ये व्यूअर्स को नहीं पता होगी, समझने वाली बात है। अच्छा, काजी साहब ने कहा कि ये एक चल रहा है कि जी यहाँ पे जो है ना कोई 2/3 का चूँकि मैटर है, तो भाई होगा क्या नाम है अपना कि चीफ जस्टिस, तो ये वो, तो उसने क्या है कि यहाँ पे 4 बल्कि 6 जो चीफ जस्टिस हैं, साफ ज़ाहिर है जिस चीफ जस्टिस को फ़ायदा पहुंचना है, अगर 2/3 रह गई और कोई जुडिशल पैकेज टाइप आ गया, जो यूट्यूब ने एक परसेप्शन बनाई थी जुडिशल दहशतगर्दी के जरिए, उस पर ये बहस हुई थी डिबेट में कि अगर ऐसा कुछ होना है तो फिर मैं तो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनता, और मैं फिर जिनको फ़ायदा मिलना है या जो इससे इफ़ेक्ट होंगे,
फायदा कुछ को मिलेगा, कुछ इफेक्ट होंगे, कुछ मुतासर होंगे। उन सब को इसमें इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो हम बाकी जजेस को कह देते हैं जो इसमें बरह रास्त जिनका इंटरेस्ट नहीं होगा, ताकि आइन और कानून के तकाजे पूरे हों। वहां पे लड़ाई हो गई, अच्छा सही और खास कर जस्टिस ये कैसे हो सकता है, हम सीनियर जज हैं, हम इस केस से कैसे बाहर निकल सकते हैं, हमें तो बैठना है, हम होंगे तो ये केस सुना जाएगा, वरना केस नहीं सुना जाएगा। इतना कुछ हुआ तो काजी साहब ने कहा कि ठीक है, फिर आप कहते हैं तो मैं भी हूँ। फिर हम सारे वो जो उस टाइम के अवेलेबल जजेस थे उस पर उन्होंने 13 रुकनी बेंच बनाया। हाँ। फिर उसके बाद 13 रुकनी बेंच में से फिर 8 की कारीगरी आपने देख ली कि जैसे कोई शायर की गजल, हाँ वो अच्छा तैयब तख्लीक मुहावरे। अभी मैं समझ गया, सीन को व्यूअर्स भी समझ गए होंगे। मुझे ये बताएं, ये तारीख आज की लास्ट डेट है, ये लास्ट डेट है, अमल दरामद इस पे नहीं होना। अब क्या होगा? इस पे अमल दरामद नहीं होगा, क्योंकि जजेस भी किया ही नहीं है अमल। 2 जजेस भी कह चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को फैसला जितना समझ आया, ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन की कोई वो है, उसको जितना फैसला समझ आया उस पे किया है, उस पे उन्होंने इम्प्लीमेंट कर जो दिया। कंफ्यूजन है, जो उसके लिए कंफ्यूजन है, रुजू किया सुप्रीम उस पे कोर्ट से। उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट से रजू किया कि सर आपने फैसले में लिखा था कि चैम्बर हम अवेलेबल उनको होंगे, कोई कंफ्यूजन खत्म कर तो कर भाई नहीं आप रहे चैम्बर में ही हमारी सहूलत का वो कर दे, वजाहत कर दे, हाँ। वजाहत कर दे, ताकि हम ये जो 41 लोग हैं इनको हम कैसे जो है वो रुकन डिक्लेयर करें और कैसे जिन्होंने हलफ देना है कि हम किस पार्टी के साथ हैं। हाँ, तो इनको कैसे, क्योंकि उन इलेक्शन कमीशन के पास जो 41 का डाटा सबमिट हुआ उसमें पीटीआई का ऑफिशियली तो था, लेकिन उसमें चेयरमैन के दस्तखत नहीं थे। ये टेक्निकल बात कि इलेक्शन कमीशन का मसला और नहीं है, बैरिस्टर गोहर लीगल नहीं है, लीगल नहीं है, तो पीटीआई का चेयरमैन का वजूद नहीं है, तो उस वजह से उसमें दस्तखत नहीं थे। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सर ये तो मसाइल है, आप बताएं हम कैसे इनको वजाहत कर दें कि कैसे हम इनको। मेरा ख्याल है एक आइडिया आया अच्छा, मुझे, हाँ, एक मिनट, जी। इन मुअज़्ज़िज़ साईं मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब के लिए आइडिया है मेरे पास। जिस तरह पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ी, उसको पार्लिमानी पार्टी ऐसे ही हवा में दे दिया करार, इस तरह इलेक्शन कमीशन के पास कंफ्यूजन जो है ना, ये जज ख़त्म कर सकते हैं। वो ये कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई कोई चेयरमैन नहीं है, ये ऐलान कर दें इंट्रा पार्टी इलेक्शन किस चीज़ के, क्योंकि फैसला तो इन्होंने देना है। ये कह दे कि भाई बैरिस्टर गोहर लीगल है, तो वो कहे ना, ये मसला हल हो जाएगा। नहीं कह रहे ना वो अगर ये यार पीटीआई को पार्लिमानी पार्टी करार दे सकते हैं तो बैरिस्टर गोहर को भी कर सकते हैं। नई पार्टी का वजूद दे दिया आफ्टर इलेक्शन, गड़िया रिवर्स कर, मतलब ये भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सर ये देखिए, जब आप आइन और कानून से इनहराफ करके एक तखयलाती खुद साख्ता और इन मुअज़्ज़िज़ जजेस से ये तवक्को रख भी सकते हैं आप, रख सकते हैं, लेकिन अब कैसे करेंगे? बात ये इसी वजह से तो वो कर ही नहीं रहे, साइड पे हो गए हैं। नहीं, ये आइडिया नहीं होगा, आज आइडिया हम दे रहे हैं, आप दे दे, उनके पास इससे भी बड़े आइडिया होंगे। उनके पास अगर वो इतनी कारीगरी उन्होंने की, इतना बड़ा आइन को मुअत्तल करके और एक मावरा आइन एक चीज तश्कील करके दी नई शिक्के शामिल कर दी, तो वो फिर तरीके इंसाफ को ये भी कर देते थे। लेकिन बात ये है कि चैम्बर में तो उनके पास एप्लीकेशन थी इलेक्शन कमीशन की, लेकिन अब ये मेरे सोर्सेज कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी अब तफसीली फैसला आएगा तो हम उसमें वजाहत कर देंगे। दूसरा, अब आईनी और कानूनी तौर पे ये डिबेट ये चल रही है कि क्योंकि 2 रुकनी बेंच ने फैसला गैर कानूनी कर दिया है, तो ये 2 रुकनी बेंच 8 रुकनी बेंच के फैसले या 8 जजेस के फैसले को गैर कानूनी करार नहीं दे सकता। या ये खासकर ये पॉइंट है कि वो ये नहीं कह सकता, या अगर 2 जजेस ने ये कह दिया है कि फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी है, इस पे इम्प्लीमेंट ना किया जाए, तो 8 की स्ट्रेंथ चूंकि ज्यादा बनती है तो 2 की वुकत नहीं बनती। मैं उन लोगों के लिए एक तरीक से एक बात बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ इन 2 जजेस ने नहीं कहा, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के शायद गालबन 14 जजेस थे, ठीक है, जो 31 जुलाई 2009 का फैसला है सिंध हाई कोर्ट बार की मुशर्रफ की एमरजेंसी से मुतल्लिक, उसमें 14 जजेस कह चुके हैं, रियासती इदारों को बाउंड कर चुके हैं कि अगर कोई फैसला जिसका आइन में वजूद नहीं है, जिसका कानून में वजूद नहीं है, उस फैसले पर पाबंदी ना की जाए। अमल दरामद के पाबंद नहीं है ऐनी इदारे। तो यूं ये 2 के अलावा 14 जज जब कह चुके हैं तो 8 जजेस बेवकत हो गए। हाँ, उनका फैसला भी फिर 14 कह रहे हैं ना, कह चुके हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से फैसले की वुकत खत्म हो गई और इलेक्शन कमीशन
पाबंद नहीं है आप सही। फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन तो एक काम इलेक्शन कमीशन को भी ये चाहिए अब कि एक तो इलेक्शन कमीशन एक पिटीशन दायर करे, मिसाल के तौर पर, या दरख्वास्त दे, उनको बताए कि भाई एक तो आपकी बेंच के 2 जजेस का ये फैसला है कि इस पे अमल दरामद करने का कोई भी पाबंद नहीं है, इसके अलावा आप 8 हैं, वो 2 हैं, चलो उनकी 2 की अहमियत नहीं है, लेकिन ये 14 का भी फैसला है, तो अब क्या करें? ये इलेक्शन कमीशन को रुजू करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, बात ये है कि ये हुकूमत भी कर सकती है, हुकूमत भी कर और सकती है, बाकी चीजें भी हैं। अभी तो इन्होंने जजमेंट लिखना है ना जी, डिटेल जजमेंट लिखेंगे तो पता आज एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जी, किया गया कि काजी साहब ने ना जस्टिस मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह के रिसर्चर और ड्राइवर ले लिए हैं। हाँ ठीक है, अब बात प्रोपेगेंडा करना होता है, आप काजी फोबिया का शिकार हो तो कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, आपसे किसने पूछना है ना, वैसे आपने आइन और कानून को बात यह है कि वो डेपुटेशन पे आए हुए थे, डेपुटेशन जब आपको पता है जब डेपुटेशन पूरा हो जाता तो वो अपने महकमों में चले जाते हैं। सही है। तो अब इसका वो कह रहे हैं जी इस वजह से फैसला नहीं लिखा जा रहा। बात ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर का अगर ड्राइवर ले लिया गया तो क्या फैसला जस्टिस ड्राइवर ने लिखना है या रिसर्चर ने लिखना है? रिसर्चर ने लिखना, फैसला तो इन्होंने लिखना है। हाँ। ठीक है, अब ये फैसला लिख नहीं पा रहे, और जब लिखेंगे तो बात हम ये देखेंगे, क्योंकि असल में टेक्निकली समझें, जो जज अकलियती होते हैं ना, जो अकलियत में जो इख्तलाफ कर रहे होते हैं, वो उस वक्त अपना डिटेल जजमेंट लिखते हैं जब अक्सरियत का फैसला आ चुका होता है। वो कहते हैं कि ये फैसला क्यों गलत है, क्या वजह है। इन्होंने फैसला दिया नहीं है, तो इन 2 जजेस ने जो मुख्तसर फैसला था उसको बेस बना के आपको और हमें वो कारीगरी इनकी बता दी है कि ये किस तरीके से तरीके इंसाफ की सहूलत कारी में लगे हुए थे। अब हक़ाइक़ समझ आ रही है कि भाई मंसूर अली शाह को तो वैसे जजेस का ज़ाब्ता अखलाक अदा ये कहता है कि आप चूँकि आपका इमरान खान से तल्लुक़ रहा है, आप इमरान खान के वकील रहे हैं, आपने इमरान खान की झूठी या सच्ची जो भी था कि उसकी वकालत पहले भी रिलीफ देते रहे, तो इस वजह से आपको तो खान के केसेस से दस्तबरदार होना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। ये जजेस का ज़ाब्ता अखलाक है। लेकिन सही मंसूर अली शाह खान के केसेस ज़बरदस्ती अपने पास लगवा के जज हो के भी खान की वकालत करते नज़र आते हैं। ये मंसूर अली शाह साहब से हमें तवक्को नहीं थी और नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ये सब बात सुने, मैंने ये सही कहा था आपको पिछले व्लॉग में कि पीटीआई को अपने वकला को पैसे फीस नहीं देनी चाहिए, मुअज़्ज़िज़ जजेस को देनी चाहिए, क्योंकि केस जजेस ने लड़ाया। बाकी अब तक भी हुई हो, लेकिन बात ये है कि कोई पता नहीं। ये बात अफसोस हमें ये होता है कि यहाँ पे आइन कानून जो नहीं मान रहे वो ज़ाब्ता अखलाक को कैसे देखते हैं, फैसला आए तो फिर पता चलेगा। हाँ, फैसला आए क्योंकि तो 17 मिनट हो गए हैं। ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया तैयब। व्यूअर्स, तैयब के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।